In geography, we have discussed about the multi-purpose river valley projects, and we also discuss about some important multi-purpose river valley projects in India. Except all these projects, there are so many other projects which are met, but these are some important river valley projects according to your board examination, which are must be asked to locate on the Indian map. So you should prepare very well and learn their name, their river name, and in which area they are found. And some question also asked about the, like there's the Govind Sagar Lake, the Govind Vallabh Pant. So some in short best questions it may be also asked. So you just prepared very well this. So now, mm, in this lecture we will discuss about the rainwater harvesting. Actually, in multi-purpose projects we find that it is the very big task, and it takes so many times and required a large amount of money to prepare it. And we also find that there are so many disadvantages. So there are some other methods which are also used for the water conservation in particular areas. So let me try to understand the next concept. It is the rainwater harvesting. It is a technique of collection and storage of rainwater into natural reservoir or tanks, or the infiltration of surface water in surface aquifers. It means it is a technique of collection and storage of rain waters. कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो रेन वाटर्स जो होती हैं या हमारे पास जो रेंस होती हैं वो 3 मंथ्स के लिए ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे होती हैं. तो ऐसे में लोग करते क्या है कि उसको कलेक्ट करते हैं, उनको स्टोर करने की कोशिश करते हैं. अब इसमें कई सारी तरीके होते हैं. पहला है उनको नेचुरल रिजर्वायर्स में, इट मीन्स कई जगहों पे उनको एक टैंक्स, नेचुरल रिजर्वायर का मतलब एक डैम बना देना या एक गड्ढा बना देना और उसमें उस वाटर को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर स्टोर करना. टैंक्स भी हैं, टैंक्स को भी हम बिल्ड कर देते हैं और उसको किसी पाइप के थ्रू हम जोड़ देते हैं, और फिर एक ऐसी ढलान से या स्लोप बेस्ड एरिया से उसको हम पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे वाटर, रेन वाटर्स जो होती हैं वो धीरे धीरे उस टैंक्स में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं. या हम ज़मीन के अंदर कोई टैंक्स वगैरह इस्टेब्लिश कर देते हैं और फिर उस एरिया को फिर से किसी स्लोपिंग बेस पे या किसी अदर लोकेशन से या रूफ टॉप से उसको एक पाइप के थ्रू हम जोड़ देते हैं, जिससे जब भी रेन वाटर्स जब उसमें फ़्लो होती हैं तो उस पाइप के माध्यम से वो धीरे धीरे उस टैंक्स में स्टोर हो जाता है. तो इस तरह बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम रेन वाटर्स को स्टोर करके उसे हम बाद में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं. तो ये कई तरीके के होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर्स के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं या पीने के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं. So that method by which we are collecting and storing the rainwater for the future use for irrigation or for drinking are known as the rainwater harvesting. So there are some important method by which we can apply the rainwater harvesting. First is gulls and coals. Gulls and coals are found in the hilly and mountainous area. Not common in all region, but is found in the hilly and mountainous region. So in which what peoples are doing that they made the channels. Channels का मतलब है कि कोई एरिया है, जैसे सपोज कोई हिली एरिया है और उसको थोड़ा सा उसको काट छाट करके उसको ऐसा बना देना कि जिसके थ्रू वो वाटर जो है एक जगह से बहता हुआ एक लोकेशन पे स्टोर होना शुरू हो जाए. तो इस तरह से गोल्स एंड कोल्स बनाए जाते हैं
और यहाँ पर पानी को स्टोर करके उसको बाद में फ्यूचर यूज़ में, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए या इरिगेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। It is the technique through which rainwater is captured from the roof catchments and stored in reservoirs. It is especially found in Rajasthan. Rooftop rainwater harvesting. इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा राजस्थान या सेमी एरिड एरिया में किया जाता है, और ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके माध्यम से रूफ पे, छतों पे एक ऐसा लोकेशन बना दी जाती है, इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है कि वाटर जो है पूरी तरह से उसमें स्टोर होना शुरू हो जाए और किसी एक पार्टिकुलर प्लेस से जुड़ करके वो पानी नीचे की तरफ उसको निकालने का एक अरेंजमेंट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे छत पे एक टैंक नुमा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसमें पानी जो है रेन का उसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है, और फिर उसमें से एक पतली सी लोकेशन बना दी जाती है जहाँ से वाटर्स को निकालने का अरेंजमेंट किया जाता है। दैट इज़ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इस वाटर का यूज़ कैसे किया जाता है, तो उसके लिए अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं। ये मीन्स हर एक घर में उनका अपना एक कोर्टयार्ड में या कोई ऐसी प्लेस जो काफ़ी सेफ़ होती है, तो उसके नीचे ही वो लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं और फिर रूफ टॉप पे जो वाटर रुका गया है या उसको जो रखा गया है, एक पाइप के माध्यम से उसको वहाँ के वाटर्स को कोर्टयार्ड में जो टैंक्स या अंडरग्राउंड टैंक्स बनाया गया है उससे उसमें जोड़ दिया जाता है। तो जब भी वाटर रूफ टॉप पे गिरता है, फिर वहाँ से वो पाइप के माध्यम से वो धीरे धीरे आपके अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही पुराने समय से ट्रेडिशनली देखने को मिलता है और राजस्थान के अधिकांश या सेमी एरिड एरिया में बहुत ही जगहों पे मैक्सिमम हाउसेस में इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे कई और भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं, तो उसमें रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में लोग करते क्या है कि पूरी जैसे हमारे कोई एक फील्ड है, उस फील्ड में छोटे छोटे बैरियर्स बना दिए जाते हैं। जस्ट सपोज कुछ इस टाइप में, जस्ट ये हमारा रेन वाटर है, ये हमारा फील्ड है जिस पे हमको एग्रीकल्चर करना है। तो इस पे लोग करते क्या है कि कुछ इनमें डिवीज़न कर देते हैं कुछ इस टाइप में। तो अभी जब इसमें वाटर जब आता है तो वाटर क्या होगा, इस एरिया में रुक जाता है, फिर इस एरिया में रुकेगा, फिर यहाँ पर रुक जाता है। सो आफ्टर दैट कि रेन हो या ना हो, फिर ये वाटर्स क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र में पड़ा रहेगा और वो लंबे समय तक उसमें स्टोर रहेगा और धीरे धीरे जो वहाँ की सॉइल्स होती है वो धीरे धीरे उसमें मॉइस्चर्स की मात्रा उसमें बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी कैपेबिलिटी या उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। सो रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इनॉन्डेशन चैनल्स भी एक तरीका होता है रेन वाटर्स को रोक करके, इन दोनों का मैक्सिमम यूज़ है इरिगेशन में ज़्यादातर होता है। इनॉन्डेशन चैनल्स में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जस्ट सपोज कोई फ्लूड रीजन है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया जहाँ पे बार बार फ्लूड्स आते हैं, बाढ़ें आती हों, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि नदी की मैक्सिमम सीमा तक, यानी कहाँ तक वाटर लेवल पहुँच सकता है, उसको एक निर्धारित किया जाता है और उसके बेसिस पे रीजन को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जिससे जब भी फ्लूड्स जब आती हैं और वाटर जब उस पूरे लेवल पे पहुंच जाता है और जब रिटर्न होना शुरू होता है, तो वह उन क्षेत्रों में क्या करता है, वाटर्स को छोड़ करके फिर वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। जस्ट सपोज ये हमारा रिवर है और ये हमारी रिवर फ्लो हो रही है और हमें मालूम है कि जब इसमें फ्लूड आ रहा हो तो ये एरिया लगभग इधर की तरफ और इधर साइड में बढ़ जाती है और इसका नॉर्मल लेवल यहीं तक है। अब होगा क्या, जब फ्लूड्स आएगा तो ये यहाँ तक बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमने इस एरिया को डिटरमाइन कर लिया, तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में इसको कुछ ब्लॉक्स बना दिया जाता है कुछ इस टाइप में,
सेम वे में इधर भी कुछ ब्लॉक्स इस टाइप के बना दिए जाएंगे। तो वाटर्स क्या होगा कि जब ये वाटर जब इधर को पहुँचेगा, यहाँ तक अगर आ गया, तो अब वाटर जब रिटर्न होगा तो इनमें क्या होगा, ये वाटर्स को छोड़े रहता है। तो इन ब्लॉक्स में पूरी तरह से पानी भरा रहता है, या इसको अच्छे से पूरी तरह से एक कहा जाए तो पूरी तरह से एक छेदनुमा या एक टैंक नुमा छोटी छोटी आकृतियाँ बना दी जाती हैं। तो उनमें वो वाटर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, तो जिसका हम यूज़ बाद में इरिगेटिंग्स के लिए भी, या मीन उसकी क्वालिटी अच्छी और बन जाती हैं। सो दीज आर सम बेसिक इम्पॉर्टेंट areas or the method by which we can store the rainwater. Tanks is also important. So tanks जैसे से हम छतों पे भी बना सकते हैं, या किसी हमारे जो एक ट्यूबवेल जैसा बन जाता हो तो उस टाइप का एक टैंक नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। जब रेन वाटर्स होती हैं तो स्लोप एरिया उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दी जाती हैं। तो वाटर जब भी रेन वाटर्स होती हैं या रेनफॉल होती है तो वाटर उस स्लोप्स पे या किसी वाटर पाइप्स के थ्रू उस एरिया में पहुंचाया जाता है, जैसा हमने अंडरग्राउंड टैंक्स में देखा था। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट मेथड बाय विच वी कैन स्टोर द रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़।